So I was going through the comments that you people had given in the chat box yesterday, and I remember one or two comments which I did not address yesterday. One of the candidates said that the C programming is very Tarun Gupta, please mute yourself. You should only unmute yourself if you want to ask anything. Okay. So I remember one guy said that this is very intimidating and he's not understanding what is being taught. तो मैं थोड़ा और बेसिक पे दोबारा आज करवाऊंगा, ठीक है. I will try to go with the basics again and we will go step wise. And secondly, there was one guy who I think wrote that I know Java. Should I go with advanced Java and not do C? For that person, I would say that it's a good thing that you have learned Java earlier, but this subject is about C programming and you should not underestimate this subject. I have seen the cases previously in the previous years. ऐसा हुआ है that people say कि मुझे आती है या C programming हो जाएगी, मैं कुछ और कर लेता हूँ. In that case, some of you might get low marks in the end. So do not do that kind of a thing कि आप C को छोड़ दोगे और Java को फोकस कर रहे हो या फिर आप Python सीख रहे हो. उस केस में अगर आपके 60-70 नंबर आ गए एंड में तो आपका ही नुकसान होगा. इट्स बेटर टू गो हेड विद द सिलेबस, ठीक है. आप ध्यान से पढ़ाई करो अपनी and whatever is being taught, take it seriously. And one second, why is my voice echoing? Okay, no problem. So let's continue from here. Again, I will discuss this basic thing again. Yesterday we were discussing this thing. Can anyone tell me that why did we use this hash include stdio.h? What was the purpose? To include some important files for like printf. Yes. So printf was one of the function that is predefined in this header file. अब ये header file दिखता कैसे अगर आप इसके डिटेल में जाओगे backend पे. अगर जैसे suppose you open this program stdio.h, you will see that there is this function called printf which is inbuilt at the backend, and there are few commands here. Similarly, scanf is there. Scanf ka we will cover today, and there are getchar. It is for characters, for the input of character. Similarly, there is putchar. So there are few functions that are available in my standard input output.h. This is a file which I want to include because I want to use these functions. So if I do not use stdio.h in the beginning, अगर मैं ये line skip कर देता हूँ अपने कोड में, तो वो बोलेगा कि यार अगर तुमने use करना ही है अंदर तो आप खुद का बना लो फिर. मतलब it says that make your own printf function if you want to make, otherwise you should include this stdio.h. So this was the basic about the first statement. One second, there is one question in the chat box. Standard input output, it's like a module. Yeah, it's a header file, so we will say that it's a header file. And moreover, जब भी आप printf कर रहे हो, it has to be, I mean it is case sensitive, so you have to write it like this. P capital नहीं होगा, F लिखना पड़ेगा, सिर्फ print से काम नहीं चलेगा. And printf में there can be only one pair of quotes, ठीक है. Yesterday also we discussed कि अगर आपने suppose कोड्स ही प्रिंट करवाने हैं कि खाली कोड्स ही प्रिंट कर दो, in that case what you will do is you will have to write within printf like this. So you will use a escape character with this backslash, and this thing will help you to get this single double comma printed. If you want a pair, you can do it twice and then quotes will be there. So this quotes will be the साइन के भाई इसके अंदर का जो भी है उसको प्रिंट करवा दो. तो that's how hello world is being printed. And in this case hello world has total of 11 characters. वन बाय वन करेक्टर देखेंगे तो h आया सबसे पहले, हेलो तक टोटल 5 हो गए. ऐसे ही वर्ल्ड के 5 हैं तो 5 + 5 = 10, बट देयर इज दिस स्पेस इन बिटवीन. तो एम्प्टी जो स्पेस है उसको भी हम काउंट करेंगे. लेटर ऑन वी विल स्टडी दैट व्हाट आर स्ट्रिंग्स. तो इसको अगर मैं एज अ स्ट्रिंग इनपुट दूंगा तो इसका जो लेंथ आएगा वो 11 आएगा. सो दिस इज लेंथ 11. एंड व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ रिटर्न 0? कैन एनीवन टेल मी? जितने भी रैम वो ले रहा है प्रोग्राम रन करते हैं, it is used after successful completion. Yes, so both of you are correct. Return 0 is a signal to the operating system, ठीक है, that my program is successfully completed and you can take back your resources.
क्योंकि जो मेरा ये मेन फंक्शन है, whenever I run a program, let's say that my program name was hello.c, so I did not tell you yesterday, डॉट सी से ही हम सेव करेंगे अपने सी प्रोग्राम को. इफ यू राइट हेयर cpp, then it is a C++ program, and this syntax will give you error if you save it with the .cpp. .cpp में आपको फिर वहां पे अपना printf की बजाय cout लगाना पड़ेगा, तो उसका बिल्कुल ही अलग सिमुलेशन होती है. तो just remember this, that your function that your program has to be saved with .c extension only. So which section? So this section is 1 ME 1 2 3. So these are mechanical students, not the COE. Please check your timetable. Okay, so I hope this basic program is clear. Let's go to the next slide. वो जो रिटर्न 0 लिखते हैं वो नहीं लिखेंगे तब भी प्रोग्राम रन करता है? यस, प्रोग्राम चलेगा. मैं अभी आता हूँ इसको, अभी ना हम प्रैक्टिकली एक ही नया प्रोग्राम देखते हैं. व्हेन आई विल गो टू द कंपाइलर, आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा, तो मैं रिटर्न 0 हटा के भी चला के दिखाऊंगा. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में. देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस प्रोग्राम इज अबाउट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. ठीक है, अगर आपको कल को कोई बोले कि भैया एडिशन ऑफ 2 नंबर्स बता दो, तो ये प्रोग्राम आप वहां पे चिपका देना, आपका काम हो जाएगा. तो करना क्या है इसमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर अगेन यूजिंग दिस हैश इंक्लूड. ये तो आना ही आना है बिकॉज आई वांट टू यूज printf, तो मुझे ये करना पड़ेगा. stdio.h को तो बुलाना ही पड़ेगा. एंड आई एम डिफाइनिंग, तो इसमें डेक्लेरेशन भी नहीं, हम इसमें सीधा डिफाइन ही कर रहे हैं. देयर आर 2 थिंग्स. देयर इज वन थिंग कॉल्ड डेक्लेरेशन, देयर इज अदर थिंग कॉल्ड डेफिनेशन. तो मैं इन 2 टर्म्स का मतलब आई विल एक्सप्लेन विद इन 1 मिनट. सो वी आर गेटिंग 3 वेरिएबल्स, तीनों इंटीजर हैं. Yesterday I told you that there are few kinds of variables in C programming. One of them is integer. There are others also. जैसे int है वैसे ही float होता है. There is a char also. So these are the 3 basic data types. ठीक है. int का जो by default size है, it is 4 bytes. 1 byte is equal to how many bits? Anyone? 8 sir. Yes, 8 good, 8 bits. Similarly, अगर आप यहाँ पे 1024 bytes करोगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? 1 KB, है ना, किलो. सिमिलरली अब 1024 को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2^10. अगर आप 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे आपस में, 2 into 2 into 2 into 2 ऐसे 10 times, it is equal to 1024 only. So 1024 KB या 2^10 KB is equal to MB. सिमिलरली 1 MB के बाद आएगा 1 GB, 1 GB आ जाएगा, 1 TB आ जाएगा, एंड देन 1 PB आ जाएगा, पेटाबाइट. सो दिस इज MB, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट. सो इसको आप 1024 टाइम्स करते जाओ और अगला आपको मिलता जाएगा. एंड उसके कंपैरिजन में माय इंटीजर इज वेरी स्मॉल, इट इज ओनली 4 बाइट्स. ठीक है. फ्लोट इज आल्सो 4 बाइट्स. कैरेक्टर इज 1 बाइट. So these are some basic things that you need to remember. 1 byte only, and 1 byte is 8 characters. Coming to explanation of this code, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 3 वेरिएबल लिए हैं A, B, C, और तीनों को हमने इंटीजर बोल दिया कि यार मैं इंटीजर के साथ काम करूंगा. ऑल ऑफ देम आर नॉट हैविंग एनी पॉइंट वैल्यू, इसमें कोई फ्लोटिंग नंबर नहीं है. यू आर ओनली यूजिंग इंटीजर्स, इसमें कोई पॉइंट नहीं आता. तो 10, 11 एंड C को A+B. तो मैंने ये 3 काम करवाए. उसमें मैंने क्या किया कि भाई A में 10 डाल दिया. लेट्स से दैट दिस इज माय रैम. अब क्या होता है कि जो मेरे सारे वेरिएबल हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, वो सारे बैकएंड पे रैम में सेव हो रहे हैं. ठीक है. रैम में कुछ उसको लोकेशन एलोकेट हो रही है. लेट्स से माय रैम लुक्स लाइक दिस. ठीक है. रैम तो सबको पता है, फोन में भी होती है, लैपटॉप में भी होती है ना. रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. टेम्परेरीली कोई भी काम करवाने के लिए हम उसको जगह देते हैं प्रोग्राम को कि भाई आजा, तो अपना काम कर ले, जगह ले और काम कर. तो int a = 10 का मतलब ये है, व्हेन आई डू दिस, मुझे यहाँ पे रैंडमली एक a मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगी. वो लोकेशन मेरी हो सकती है 0000 से लेके 2047 तक है. And if you count this 0000 to 2047, it is equal to 2048 total entries. तो let's say कि मेरी एक एंट्री यहाँ पे 1 MB की है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2048 MB विच इज इक्वल टू 2 GB. तो अगर आपका 2 GB का रैम है, देन लेट्स से कि भाई मुझे A के लिए जगह मिल गई है. A विल बी स्टोर्ड एट दिस प्लेस. लेट्स से ये लोकेशन थी मेरी 0501, तो मतलब ये 501 नंबर में मैंने A डाल दिया. एंड
क्योंकि मेरा ये पूरा 1 MB की लोकेशन थी, तो 1 MB में से सिर्फ उसने छोटी सी जगह यूज करी, सिर्फ 4 KB 4 बाइट्स यूज किया, नॉट इवन KB बट ओनली 4 बाइट्स यूज किया, और उसने इसको रैंडमली यहाँ पे सेव कर दिया 501 नंबर लोकेशन पे। सिमिलरली B इक्वल टू 11 का मतलब है B को भी कुछ रैंडमली मिल जाएगा, लेट्स से यहाँ पे उसको 1001 लोकेशन मिल गया, तो यहाँ पे वो एक छोटी सी जगह पे अपना 11 सेव कर लेगा, ठीक है, और बाकी वो सारा खाली रहेगा वो लोकेशन। अब टेक्निकली और डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा, फॉर रैंडम आई मीन जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पसेज आई एम सेइंग दैट इसको रैम में एक जगह मिल गई, ए को यहाँ पे एक जगह मिल गई, बी को यहाँ पे एक जगह मिल गई, एंड व्हेन यू डू सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी को भी एक यहाँ पे कोई जगह मिल जाएगी जहाँ पे वो ए प्लस बी की वैल्यू को सेव कर पाएगा। ओके, this is the basic thing here. In this single line, what we are trying to do is we are allocating some values to A, B and C and we are getting the work done. अब वर्क डन में अभी तो सिर्फ हमने एलोकेट किया है, एंड इस एक सिंगल स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि उसको रैम में पीछे बैकएंड पे इट हैज गॉट द स्पेस, ठीक है, उसको ए का 10 सेव कर लिया, बी का उसने 11 सेव कर लिया, ए प्लस बी जो भी 21 आंसर होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा आखिरी लोकेशन पे, वट एवर इज बीइंग एलोकेटेड टू सी। नाउ this statement is clear. Now what about this printf? Can anyone explain me what is this single line of printf doing? Anyone? So it is the values of A, B. the value of A, B and C. हाँ, अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो यार, मतलब बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बट बिकॉज यू आर ए बिगिनर आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन वेरी डेप्थ। अब क्या हो रहा है कि हमने प्रिंटफ को तो एज इट इज लिखना होता है, मैंने बताया था कि प्रिंटफ में हमने अगर हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो वो हेलो वर्ल्ड एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके पूरा हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाएगा एंड इट इज एज इट इज प्रिंटेड। बट इन दिस केस बिकॉज वी हैव दिस ए इक्वल टू %d वगैरह वगैरह इतना कुछ है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंटिंग करना शुरू करेंगे, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड किया था वैसे हम प्रिंटिंग करना शुरू करेंगे शुरू से यहाँ पे ए से। सो माय आंसर विल बी ए इक्वल टू, अब %d का मतलब ये है दैट इट इज एक्सपेक्टिंग वन गेस्ट विच इज ऑफ टाइप इंटीजर, तो वो उसको ये गेस्ट यहाँ से मिलेगा, जो फर्स्ट एंट्री यहाँ से बाहर से मिलेगी कॉमा के बाद वो यहाँ पे आके रिप्लेस कर जाएगा। तो मेरा ए जो 10 था इट इज इक्वल टू 10 हियर, ठीक है, कॉमा, अब कॉमा एज इट इज आ गया, उसके बाद बी इक्वल टू %d, उसको सेकंड एंट्री मिली यहाँ से, वो %d का मतलब है दैट इट इज एक्सपेक्टिंग एन इंटीजर एट दैट प्लेस, ठीक है। When we have this %d inside a printf, it means that it is expecting an integer at that particular place. So वो printing क्या करेगा, a equal to 10, अब कॉमा एज इट इज आ जाएगा, तो कॉमा b इक्वल टू सेकेंड एंट्री यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पे आके रिप्लेस मारेगा वो, तो b इज इक्वल टू 11 एंड c इक्वल टू थर्ड वाला जाके रिप्लेस करेगा, तो c इज इक्वल टू 21, तो एज इट इज उसको ये आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। अभी मैं इसको आपके सामने कोड पे रन करके दिखाता हूँ, एज इट इज ये कोड मैं देखता हूँ, मैंने शायद लिखा भी था बैकएंड पे। आई विल गो टू द ऑनलाइन कंपाइलर, where it is, ये रहा, ओके। सो हाँ, मैंने ये लिखा हुआ है, लेट्स से यहाँ पे हमने सिंगल लाइन में किया था उधर, तो मैं क्या करूँगा, मैं एज इट इज उधर वाला कर देता हूँ, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 11, c इक्वल टू a प्लस b। हम इसको सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन्स में भी कर सकते हैं, पर हम इसको यहाँ पे सिंगल लाइन में ही करते हैं फॉर नाउ। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 11, c इक्वल टू a प्लस b, और a इक्वल टू %d, b इक्वल टू %d। अब यहाँ पे न्यू लाइन तो वहाँ पीछे नहीं था, तो मैं न्यू लाइन नहीं डालूंगा, कॉमा था तो कॉमा, तो अगर मैं इसको रन करूं, इट विल गिव मी आउटपुट एज दिस, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 11, c इक्वल टू 21। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू अभी 2 मिनट पहले। आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर। अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इट राइट नाउ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, अगर इंट में ए के बाद स्पेस और इज इक्वल टू के बाद स्पेस ना दें तो क्या होगा? देखो, इंट के बाद तो स्पेस देना जरूरी है, नहीं तो वो क्या करेगा, वो इंटा बना देगा उसको, ठीक है, और इंटा इज नथिंग, तो इंटा इज नथिंग, तो स्पेस तो देना पड़ेगा। दैट्स वाई
यहाँ पे तभी वो इंट पकड़ेगा कि भाई टाइप इज ए। बट देन इसके बाद ये वाला स्पेस हम हटा सकते हैं, दिस इज ऑप्शनल। a इक्वल टू 10 कॉमा के बाद वाला स्पेस हटा दो, b इक्वल टू 11 के बीच का स्पेस हटा दो, तो ये सारे स्पेस हट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इंट वर्सेस इंटा इसमें फर्क है, ठीक है। अगर आप इसको रन करोगे आंसर विल बी सेम। ओके सर। सर एक बार प्रिंटफ वाला थोड़ा समझ नहीं आया था। मैं अभी बताता हूँ, मेरे को बस एक सेकंड दो। उससे पहले ना मैंने एक और चीज बतानी है। मुझे कोई पीछे जस्ट अभी कह रहा था कि रिटर्न 0 अगर मैं ना डालूं तो भी चल जाएगा, तो इसको रन करके देखते हैं। तो मेरा कोड इज स्टिल गेटिंग करेक्ट आंसर एंड इट इज स्टिल फिनिशिंग विद द एग्जिट कोड 0। अब देखो ये कंपाइलर इंटेलिजेंट है, बट द प्रीवियस कंपाइलर्स फॉर एग्जांपल टर्बो सी, ये इट वाज बीइंग यूज्ड 22 years ago इन द इंडस्ट्री। तो उस टाइम पे टर्बो सी में तो एक एक चीज बतानी पड़ती थी, बट नाउ इन दिस कंपाइलर, बिकॉज दिस कंपाइलर इज एडवांस कंपाइलर, ठीक है, आजकल के टाइम का है, तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ यू राइटिंग रिटर्न 0 वो तो अपना काम कर रहा है, वो काम खत्म होने पे एग्जिट कोड 0 दे रहा है बैक एंड पे। सो इसके बाद रिटर्न 0 चलो डिस्कस हो गया। नाउ आई ऑल्सो वांट टू डिस्कस वन मोर थिंग। अभी मैंने यहाँ पे डबल, हाँ जी तो मैं भी साथ साथ लिख कोड कर रहा हूँ, पर मेरा रन नहीं हो रहा। इसी वाले वेबसाइट पे कर रहे हो? डेव सी प्लस प्लस पे। देव सी प्लस प्लस पे कर रहे हो? 1 second, आई विल शेयर द स्क्रीन एंड कम टू देव सी प्लस प्लस। ये रहा, ओके, सो शेयरिंग माय स्क्रीन ऑफ देव सी प्लस प्लस। ये रहा, इसके मैंने न्यू कंपाइलर करा, मतलब न्यू करा इसको। अब मैं सेव करता हूँ। सेव करते हुए जस्ट रिमेंबर, इफ आई एम मेकिंग ए प्रोग्राम ऑफ एडिशन, यहाँ पे मुझे डॉट सी रखना है एक्सटेंशन में, डॉट सीपीपी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सेव एज टाइप में भी सी सोर्स फाइल्स कर देना, ठीक है। तो एडिशन डॉट सी आएगा और सेव कर देना। अब मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। मेरा तो ठीक से आ रहा है यार, कैन यू सी द आउटपुट? हाँ जी, इज माय आउटपुट विजिबल? यस सर। देखो तुमने क्या गलती करी है, इसको कोड को ध्यान से देखो। आई एम पुटिंग इट इन द चैट बॉक्स। हाँ जी सर, अगर हमें जस्ट सम को ही प्रिंट करना हो, जैसे इसमें अभी हमने ए की वैल्यू प्रिंट की और बी की भी की, बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट सम की वैल्यू प्रिंट करवानी, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, तुम ये कह रहे हो कि मुझे सीधा सिर्फ सी की वैल्यू प्रिंट करानी है और कुछ भी नहीं करवाना, यस। है ना? तो कुछ नहीं करना, बस इसको सारा हटा दो और यहाँ से ए बी भी हटा दो, तो सिर्फ सी की वैल्यू प्रिंट करवा दो तो काम हो जाएगा। F11 यहाँ पे 21 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे हमने सी इक्वल टू वो नहीं लिखना? कुछ नहीं लिखना, सी इक्वल टू ए प्लस बी तो कर ही दिया ना यहाँ पे इन द फर्स्ट नहीं, स्टेटमेंट जैसा इटसेल्फ। पहले हमने किया था सी इक्वल टू परसेंटेज डी, हाँ तो वो यार वो तो ऑप्शनल है ना, कि मतलब आप यहाँ पे लिख दोगे तो वो एज इट इज सी इक्वल टू दिखा देगा, अगर नहीं लिखोगे तो आंसर तो स्टिल आएगा, बस ये है कि करने पे यहाँ पे सी इक्वल टू 21 दिखा रहा है साथ में, ओके। ठीक है। मतलब इट्स आवर चॉइस कि मैं साथ में क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ओके हाँ सर। जी, कोई और डाउट है किसी को? सर जो %d है वो क्या कोई कीवर्ड है? %d it is kind of a keyword only. Give me 1 second, I am coming to this thing. मैं इसकी अब डिटेल में जाने लगा हूँ कि %d का मतलब क्या है यहाँ पे। 1 second। अब देखो यार, ऐसा है, %d is a symbol in which we are telling my printf के यार तू एक्सपेक्ट कर एक इंटीजर को, ठीक है। अब जैसे आई टोल्ड यू कि मेरा इंटीजर होता है इज वन ऑफ द variable, there is a character which is one of the variable, there is float which is one of the variable। तो मैं यहाँ पे int की बजाय float भी लिख सकता हूँ, फिर वो floating point number की तरह होगा, पॉइंट्स वाले नंबर उसमें आ सकते हैं। एंड व्हेन वी वांट टू प्रिंट दीज काइंड ऑफ नंबर्स, int है, char है, float है, तो इस केस में हम यहाँ पे एक सिग्नल दे देते हैं कि यार %d है तो मतलब इंटीजर है, बट अगर मेरा char आएगा तो %c करके लिखना पड़ेगा, फ्लोट आएगा तो %f करके लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे प्रोग्राम बनाना है एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, सपोज मुझे एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बनाना है, कैन एनीवन टेल मी हाउ टू मेक इट? देखो ये वाली 2 लाइन तो एज इट इज आ जाएंगे, उसके बाद अंदर का कोड बताओ, मेन के अंदर का, व्हाट टू डू इनसाइड द मेन फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। रेडियस हम कोई int integral r होगा? कर देंगे is वेरिएबल equal to आर 10। इंट r है, लेट्स से इंट r इक्वल टू हमने 5 कर दिया। अब
अब तो एक और फिर वेरिएबल हम में एरिया को एक स्वैप और में वेरिएबल ए ले लेंगे एक और वेरिएबल ले लेंगे ए, ओके, उसमें क्या होगा? इक्वल उसमें a इक्वल टू पाई a आर is स्क्वायर equal to 3.14 लेट्स into सुनो सुनो, हम ऐसे करते हैं कि हम फ्लोट एक वेरिएबल लेते हैं, उसका फ्लोट पाई, जिसमें हम वो वैल्यू यूज करेंगे 3.142 वाली, ठीक है जी, यही होता है जहां तक मेरे को याद है। अगर तुम 22/7 करोगे, हाँ 3.142857, उसके बाद ये रिपीट होता जाता है, ठीक है, यही होता है जी। यस सर। तो मैंने Yes, sir. फॉर एग्जांपल अपने प्रोग्राम में फ्लोट पाई इक्वल टू 3.142 कर लिया। नाउ माय एरिया ऑफ सर्कल विल बी, लेट्स से मैं एक फ्लोट लेता हूँ। क्यों मैं फ्लोट ले रहा हूँ? बिकॉज मुझे पता है कि मेरा एरिया पॉइंटों में आएगा, एक इंटीजर नहीं आएगा, वो पॉइंट्स में आएगा, तो फ्लोट एरिया। और मैं क्या करूंगा उस प्रोग्राम में आगे जाके, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू आर, ठीक है, और उसके बाद printf %f आएगा बिकॉज माई एरिया इज फ्लोट, ठीक है जी। तो %f आएगा, printf, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जी एरिया। तो अगर आप इस कोड को रन करोगे तो आपको 3.142 इंटू 5 आउटपुट मिल जाएगा आपके आउटपुट में। मैं आपको ये कोड रन करके दिखाता हूँ अभी के अभी, गिव मी 1 सेकेंड। कमिंग ऑन टू द कंपाइलर। अब देखो हमने बनाना था एरिया ऑफ सर्कल का। अब अच्छा एक बात बताओ, कैन एनीवन टेल मी हाउ टू राइट कमेंट्स एट द टॉप? अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि मैं एरिया ऑफ सर्कल का कोड बनाना चाहता सर हूँ, डबल स्लैश डाल के। डबल स्लैश, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, अरे यार, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया सिंगल कमेंट के लिए, ये सिंगल लाइन कमेंट है। यहाँ पे देखो 1 है, ये एक ही लाइन में खत्म हो गया, 2 तक तो आया ही नहीं वो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे डबल लाइन का कमेंट लिखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टार डाल दूंगा। अब देखो क्या हुआ है, मैंने स्लैश स्टार लिखा, उसके बाद मेरा पूरे का पूरा कोड कन्वर्ट होगा कमेंट में। इसको खत्म करने के लिए मुझे स्टार कमेंट लिखना पड़ेगा, मतलब स्टार एंड दिस स्लैश। तो जो भी मैं इन स्लैश और स्टार के बीच में लिखूंगा वो मेरा मल्टीपल कमेंट होगा। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट इन द नेक्स्ट लाइन कि भाई मेरा रेडियस है जो, द रेडियस वैल्यू फॉर नाउ इज 5, ठीक है जी। और पाई का तो हमें पता ही है, पाई मैं कह देता हूँ पाई शुड बी इक्वल टू 3.14, 2 भी लगा दो चलो। नाउ व्हाट टू डू, सेम वैल्यूज ऊपर वाले लेने हैं। लेट्स से मुझे इंट रेडियस लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अब ऊपर रेडियस लिख दिया तो मैं फिर अब रेडियस ही ले रहा हूँ। सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, पूरा नाम भी हो सकता है, पर ये विदाउट स्पेस आएगा। अब जैसे मैंने रेडियस करना है तो अभी के लिए चलो सिंगल वर्ड ही चलते हैं, बाद में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। इंट रेडियस इक्वल टू 5, ठीक है। फ्लोट, सर रेडियस का आर छोटा नहीं आना था? डजेंट मैटर यार, मतलब नाम है, तुम अपना नाम भी लिख लो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल का नाम है, वो छोटे बड़े से किसी से भी शुरू हो सकता है, बस एक नंबर से नहीं शुरू होगा। अगर तुम लिखो यहाँ पे के 3 रेडियस, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम गलत है। वो हमेशा करेक्टर से शुरू होगा, वो छोटा आर हो सकता है, बड़ा आर हो सकता है, कोई भी करेक्टर हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे वो रेडियस 1 के नाम से भी आके हम हो सकता है कि ऐसे करके 3 सर्कल्स का काम करना चाहें। तो मैं, अरे यार क्या कर दिया, 1 2 3, सपोज मैं 3 सर्कल्स का करना चाहता हूँ, तो रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3, ऐसे करके 5 15 एंड 25, ऐसे करके मैं 3 सर्कल्स का भी काम कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो, ठीक है। तो मल्टीपल रेडियस भी ले सकते हैं। फॉर नाउ आई एम टेकिंग ओनली 1 रेडियस। पाई की वैल्यू इज 3.142, इट इज गिवन in the program at the top. Now I want to calculate the area. तो मुझे पता है कि जो मेरा एरिया है वो होगा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई का साइन ऐसे स्टार की तरह होता है कोडिंग में। अब यहाँ पे मैं स्पेस दे रहा हूँ, बीच में स्पेस दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम हो जाएगा। रेडियस इनटू रेडियस, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसको हमने करवाना है प्रिंट। प्रिंट कैसे कराएंगे, प्रिंट एफ %f, बिकॉज मेरा जो आउटपुट है इट इज फ्लोट। तो मुझे बताना है एरिया ऑफ द सर्कल इज %f, कॉमा एरिया। आई होप सबको समझ में आ रहा है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। लेट्स रन दिस। एरिया ऑफ माई सर्कल इज 78.550003। अब देखो एक चीज इसमें नोटिस करने वाली है, मैंने पाई की वैल्यू दी थी ये,
ठीक है, और नंबर था अपना 5, बट मेरा जो आउटपुट आया है उसमें पॉइंट के बाद 6 कैरेक्टर्स है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि बाय डिफॉल्ट मेरा जो फ्लोटिंग नंबर है वो पॉइंट के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस तक जाता है। और अगर मैं इसको सपोज सिर्फ 2 डिजिट तक ही लेके जाना चाहता हूँ या फिर 3 तक लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 0.3 लगा दूंगा। ठीक है, तो ये 0.3f हो जाएगा। तो फिर ये 78.550 पे खत्म कर देगा, 003 उड़ा देगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, यू कैन सी दिस। 5 से 0, देखो यहाँ पे 6 डिजिट की बजाय सिर्फ 3 पे उसने खत्म कर दिया पॉइंट के बाद। एनी डाउट इन दिस? इफ यू हैव यू कैन आस्क राइट नाउ। सर अगर एरिया के पीछे हम लोग डेटा टाइप इंटीजर ले ले तो यार वो ठीक से काम नहीं करेगा, मुझे लग रहा है वो 78 ही दे देगा फिर, मतलब वो अपना 0.550 को काट देगा। लेट्स सी क्या करते हैं। %d लगा दिया, इंट एरिया में हमने कर दिया। मुझे तो लग रहा है यहाँ पे एरर ही ना आ जाए, बिकॉज आप यहाँ पे फ्लोट नंबर दे रहे हो और यहाँ पे मतलब इसको संभालने के लिए हमने इंट बोला है यहाँ पे, जबकि वन ऑफ द नंबर इन बिटवीन इज फ्लोट। लेट्स रन दिस। हाँ, तो यहाँ पे उसने पॉइंट वाला हटा दिया, 78 पे खत्म कर दिया। उसने 78.550 की बजाय 78 ही रखा, पॉइंट वाला सारा उड़ा दिया। ये नुकसान है अगर आप मतलब फ्लोट नहीं लोगे यहाँ पे। एनी अदर डाउट? हाँ सर, एक चीज पूछनी थी, जो हाँ जी। आपने प्रिंट एफ वाले जो लाइन है उसमें सर %f के बाद कॉमा लगा के एरिया क्यों लिखा है सर? यार देखो, मैंने हमेशा यही बोला है पहले कि आपका जो बाहर वाली चीज होती है ना, वो एज ए गेस्ट अंदर जाता है जहां पे उसको जगह मिले। जैसे हमने %d पहले लगाया था कोड में। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड, कमिंग टू माय स्लाइड अगेन। अब यहाँ पे देखो हमने कॉमा a कॉमा b कॉमा c करा था, तो वो a हमारा फर्स्ट %d के पास गया था, b वाला सेकंड %d के पास गया था, और c वाला हमारा थर्ड %d के पास गया था। तो अब लेटेस्ट केस में हमारा abc 3 नहीं है, हमने सिर्फ एक वर्ड लिया है एरिया। अब वो सिंगल a की बजाय एरिया नाम लिख दिया है, बट वो a भी लिख सकते थे, तो एज इट इज वो %f के पास चले जाएगा हमारे कोड में। क्लियर हुआ? पर ऐसा तो नहीं हो लेकिन सकता उसको कि लिखना क्यों था, मैं ये नहीं समझा सर। क्या कह रहे हो? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। आप कह रहे हो कि ये लिखना ही क्यों था यहाँ पे? हाँ हाँ सर, मतलब एरिया लिखने की नीड क्या पड़ी वहां पे? मेरे भाई, क्योंकि हम इस एरिया में ये सारा सॉल्व कर रहे हैं। मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो एरिया नाम के फ्लोट वेरिएबल में सेव हो रहा है, और हम उसी एरिया को यहाँ पे बुला रहे हैं कि जा भाई जगह ले और प्रिंट मार। एक्सक्यूज मी सर। यस। हाँ ठीक है सर। सर ये परसेंटेज मल्टीप्लाई का साइन है? ये वाला यस सर, कि ये मल्टीप्लाई करना है इसको? मल्टीप्लाई तो नहीं है। देखो मल्टीप्लाई का साइन ये वाला है, स्टार। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू आंसर योर क्वेश्चन, मल्टीप्लाई इज द स्टार अपने प्रोग्रामिंग में, सी में। %f का मतलब सिर्फ इतना है, विद इन द कोड्स ऑफ printf, अगर मैं %f लिख रहा हूँ या %d लिख रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ इतना है दैट इन दिस केस ये %c है। क्या यार खिचड़ी बन गई। दोबारा लिख देते हैं, %d %f %c। तो अगर मैं printf के अंदर, या फिर अभी आगे जाके आई विल टीच यू टुडे scanf, तो अगर आप printf या scanf के अंदर % लगा रहे हो और साथ में d बता रहे हो या %f बता रहे हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है दैट प्लीज एक्सपेक्ट इंटीजर इन दिस केस, फ्लोट इन दिस केस, एंड कैरेक्टर इन दिस केस फ्रॉम द आउटसाइड। इस केस में हमारा जो एरिया था वो यहाँ पे जाके फ्लोट जगह लेके बैठ गया, बिकॉज दिस printf function within these two quotes is expecting a float number at this point. समझ आया जी? यस सर। तो सर अगर हम लोगों ने जैसे इंटीजर परसेंटेज नहीं स्पेसिफिकली वो लिखते। करना है, वन बाय वन प्लीज। हाँ जी, बोलो एक जना। इंटीजर हम लोगों ने जैसे स्पेसिफिकली एंटर करवाना है, तो उसके लिए %d ही यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब अगर मुझे सिर्फ इंटीजर के साथ ही काम करना है, सपोज मुझे यहाँ पे ये वाली लाइन को चेंज करके लिखना था, रेडियस इक्वल टू, मैं अभी लिख के दिखा देता हूँ यार, एक सेकेंड, अब तो कोड अपना चल ही रहा है। लेट्स से आई वांट टू राइट हियर माय रेडियस इज इक्वल टू, देन इट विल बी %d, ठीक है, कॉमा पाई इक्वल टू, क्योंकि वो फ्लोट है ऊपर तो %f, माय एरिया इज इक्वल टू अगेन %f।
तो इस केस में मुझे वो, अब देखो, अब इस केस में क्या हो रहा है, जो मेरा printf है, इट इज एक्सपेक्टिंग 3 गेस्ट इनसाइड इट। दिस इज द फर्स्ट गेस्ट, दिस इज द सेकंड गेस्ट, दिस इज द थर्ड गेस्ट। उसको बाहर से वैल्यू चाहिए तीनों की, तो हम उसी सीक्वेंस में लिख देंगे। रेडियस वाला सबसे पहले लिखेंगे, इट विल बी रेडियस कॉमा, सेकंड वाला पाई था तो वो पाई कॉमा। अब ये 1 बाय 1 रेडियस वाला इसको मिल जाएगा, पाई वाला सेकंड वाले को मिल जाएगा, एंड एरिया वाला थर्ड वाले को मिल जाएगा। नाउ इफ आई रन दिस कोड, you will see all the values are being printed in a sequence, radius equal to 5, pi equal to this and area equal to this। अगर सीक्वेंस में बाहर नहीं लिखा तो फिर क्या होगा, मतलब जो व्हाइट में लिखा है, अगर पाई को पहले कर दिया रेडियस बाद में, तो फिर एरर आएगा, क्योंकि देखो इस केस में एरर आएगा। अदरवाइज अगर सपोज मैं, अगर मेरा रेडियस भी 5.0 होता, सपोज मैंने इसको 5.0 कर देना था। मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पे। अब सपोज ये फ्लोट 5.0 था, फ्लोट रेडियस, तो इसको भी मैं %f कर दूंगा। आपने मुझे बोला कि गलती से किसी बंदे ने रेडियस को फर्स्ट की बजाय सेकंड पे लिख दिया यहाँ पे, यही कह रहे हो? यस। है ना? तो इट विल बी वेरी सिंपल। जो ये वाला पाई है वो इस रेडियस के सामने आ जाएगा, जो रेडियस है वो मेरे पाई के सामने आ जाएगा, मतलब लोकेशन उसको सीक्वेंस में मिलेगी। अब इस केस में देखो ये एरर देगा, मतलब एरर नहीं, रिजल्ट तो दे देगा। रिजल्ट दिया भी ठीक है, ठीक है। अब देखो रिजल्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप कैलकुलेशन एरिया के बिल्कुल ठीक कर रहे हो। बट देन व्हेन यू आर प्रिंटिंग, आपका पाई का वैल्यू और रेडियस का वैल्यू एक्सचेंज हो गया आपस में। ठीक है जी। तो अब इसको एरर नहीं देना चाहिए था कि ये तो फ्लोट की वैल्यू 5 पहले हमने डिक्लेयर की, फिर बाद में ये प्रिंट हो रही है। ना ना ना, अब देखो ये वाली चीज मैंने अब यहाँ पे डिस्कस करनी थी, तभी मैंने पहले ऊपर फ्लोट कर दिया ताकि एरर ना आए। अब क्या है, मैंने बोला कि यार मेरे तीनों फ्लोट हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे तीनों फ्लोट हैं एक्सपेक्टेशन में। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम किस सीक्वेंस में भेज रहे हैं। अब अगर मुझे इसको सेकंड पे भेजना था तो मुझे लिखना भी सेकंड पे चाहिए था, लेकिन मैंने लिखा पहले पे है, इस करके यहाँ सेकंड पे नहीं जाएगा, ये पहले वाले पे जाएगा, और सेकंड पे जाएगा सेकंड वाला बंदा, तो इसको ये लोकेशन मिलेगी, थर्ड वाले को थर्ड वाली मिलेगी। इन केस एरर आना चाहिए, आप ठीक कह रहे हो, एरर आना भी चाहिए। वो पता कब आएगा, वो सिर्फ तब आएगा इफ यू राइट इंट हेयर, कि भाई मेरा रेडियस इंट है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इंट 5 कर दिया। अगर अब मैं इसको लिखूं %d, क्योंकि रेडियस मेरा %d था, बट नाउ आई एम सेंडिंग ए पाई वैल्यू विच इज ए फ्लोट वैल्यू एट द लोकेशन ऑफ d। अब यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है, एरर विल बी कि भाई वो तो, ये देखो कितना कुछ आ गया यहाँ पे। ये कह रहा है कि यार तुमने तो पाई बोला था कि भाई मैंने भेजना फर्स्ट लोकेशन पे, पर यहाँ पे तो मुझे इंट मिल रहा है, मतलब इंट चाहिए था, पर भेज आप यहाँ ओके पे पाई की वैल्यू रही हो विच इज ए डबल और ए फ्लोट। ठीक है। ओके सर। हाँ, एनी अदर डाउट एनीवन? सर अगर हम ये करें कि जो प्रिंट एफ है उसमें हम केवल रेडियस की हमें प्रिंट करनी है, हमें पाई की प्रिंट नहीं करनी, तो हम पाई की हटा सकते हैं ऐसे? यस 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 यस, यहाँ से आप पाई हटा दो, और और यहाँ वहां पे से गैस। यहाँ से भी पाई को हटा दो, तो वो सर बस हम दो जनों को प्रिंट करवा इस देगा। वाले पार्ट को कहते क्या है, जो ये एंड में हम ये रेडियस और एरिया लिखते हैं? टेक्निकली आई विल कम टू दिस लेटर ऑन, मुझे भी एग्जैक्ट इसका कीवर्ड अभी याद नहीं आ रहा, बट दिस इज ए वेरिएबल, इतना तो मुझे पता है दैट दिस इज ए वेरिएबल इंट रेडियस फ्लोट पाई फ्लोट एरिया, दीज आर द वेरिएबल्स दैट आर बीइंग सेंट इनटू दिस थिंग, इनटू द प्रिंटफ। ठीक है, मतलब ये इसके आर्ग्यूमेंट हैं, आप इसको ये कह सकते हो, बिकॉज दिस इज ए, मुझे तो चलो ये पता है, आपको मैं बता देता हूँ। जो ये प्रिंटफ है, प्रिंटफ इज माई फंक्शन, ठीक है, प्रिंटफ इज माई फंक्शन। प्रिंटफ के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारे मेरे आर्गुमेंट हैं। दिस इज माई आर्गुमेंट 1, इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, दिस इज माई आर्गुमेंट 1, दिस सेकंड वन इज माई आर्गुमेंट 2, थर्ड वन इज माई आर्गुमेंट 3। तो इन दिस केस माई दिस कोट्स is my arg1, this is my argument 1, this thing here it is my argument 2, this thing third one is my argument 3 in this particular case। समझ में आ गया जी? यस सर। हाँ, let's come to the slide। हाँ जी। So suppose you have to print only the area wala part. So can we do it this way कि we shouldn't put like %f और हम सीधा ही area print करा दें? आप ये कह रहे हो कि अगर मैं सपोज ये वाली चीज लिखता ही नहीं, इसको मैंने उड़ा दिया, आप ये कह रहे हो सीधा प्रिंटफ एरिया मार दो, है ना? तो एरर आएगा, बिकॉज इट शुड बी गिवन के भाई करवाना क्या है प्रिंट। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंटफ में डबल कोट्स होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं है उसको पता ही नहीं भाई साहब को कि प्रिंट क्या करवाना था। डबल कोट्स ही बताएंगे कि मुझे प्रिंट क्या करना है, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट इज बीइंग प्रिंटेड। अगर आप ध्यान से देखो इस कोड को,
विद इन दिस डबल कोट्स जो भी लिखोगे, दिस इज द ओनली थिंग दैट इज बीइंग प्रिंटेड। तो डबल कोट्स तो होना जरूरी है। आप इतना कर सकते हो कि आप इतना बड़ा अगर ये वाली लाइन नहीं लिखना चाहते यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो आप एरिया वेरिएबल को भी यूज मत करो, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो कि भाई मुझे पाई को और रेडियस को ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो भी आपका एरिया तो प्रिंट हो ही जाएगा। अब हमने क्या करा कि हमने फ्लोट एरिया हटा ही दिया, ये वाला हमने हटा दिया, हमने यहाँ से एरिया भी हटा दिया, हम सीधा यहाँ पे कैलकुलेशन करके एज इट इज इस कैलकुलेशन को अंदर एरिया के साथ प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एरिया इक्वल टू 78.550003 आ गया। एनी अदर डाउट सर? हाँ जी सर आपने वो दो सर- स्लैश क्यों यूज किए थे फ्लोट एरिया से पहले? कमेंट है ना, ये कमेंट होता है, मैंने बताया था सिंगल लाइन कमेंट, ताकि ये यूज ना हो। हाँ जी क्या कह रहे हो? मॉड्यूलस एफ और मॉड्यूलस यूज करना मतलब कंपलसरी हो जाएगा? क्या कह रहे हो? मॉड्यूलस क्या? मॉड्यूलस एफ और मॉड्यूलस डी कंपलसरी है यूज करना? हाँ यस, मॉड्यूलस एफ इज कंपलसरी इन केस आई वांट टू गेट द वैल्यू प्रिंटेड एज ए फ्लोट। अगर ये मेरा फ्लोट नंबर है तो मैं उसको परसेंट एफ में भेजूंगा, अगर मेरा ये इंटीजर नंबर होता तो मैं यहाँ पे परसेंट डी लिख के काम चला लेता। So I cannot directly call up the variable, I guess. What? Your voice is I not very cannot clear. हाँ जी So I दोबारा cannot बोलो। directly I cannot directly call the variable, I guess. You cannot directly call the value without this thing? Yes, sir. No. That's what I'm saying कि आपको ये कोड्स में तो लिखना ही पड़ेगा, then only you I mean पर प्रिंटफ कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा सिवाय इस लाइन को प्रिंट करवाने के। अब इसके अंदर उसको क्या मिल रहा है वो अलग बात है। आप इसका सिर्फ एरिया प्रिंट करवा रहे हो, परसेंट एफ नहीं लिख रहे, सिर्फ आप एरिया या हैप्पी बर्थडे या हेलो वर्ल्ड लिख के प्रिंट कर रहे हो, या फिर आप कोई वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए एरिया इक्वल टू परसेंट एफ करके उसको बाहर से वैल्यू दे रहे हो, कॉमा के बाद जो भी होगा वो वैल्यू एज इट इज उसको परसेंट एफ को यहाँ पे इस केस में मिल जाएगा। ठीक है जी सर यहाँ पे फ्लोट लिखने का क्या मतलब है? फ्लोट लिखने का मतलब ये है कि बिकॉज आई वांटेड टू यूज दिस पॉइंट वाला नंबर, ठीक है, दिस इज नॉट इंटीजर, 3.142 इज नॉट ए इंटीजर, इट इज ए फ्लोट नंबर। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग इट इज ए फ्लोट नंबर, इसलिए मुझे यहाँ पे एफ लिखना पड़ रहा है, फ्लोट लिखना पड़ रहा है। हाँ जी सर आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 सर वो समझा दो कि वो क्या मतलब? वो अभी नहीं मैं समझाऊंगा, एक ना हमें आगे जाके चैप्टर आएगा फंक्शंस, मैं तब उसको बहुत डिटेल में करवाऊंगा, हो सकता है फंक्शंस के ऊपर हमें 3-4 लेक्चर लग जाएं या 2 हफ्ते लग जाएं, तो आई विल गो इनटू डिटेल एट दैट टाइम, अभी नहीं। ठीक है ओके हाँ जी और बताओ। सर हम इसमें yes. रेडियस इनपुट भी ले सकते हैं मतलब बार-बार? हाँ yes thank you for reminding me that. So let me start introduction to scanf। मुझे फटाफट से एक scanf के बारे में बात करनी है, हमने printf तो बहुत बात कर ली, एक scanf नाम की भी चीज होती है। scanf क्या करता है? it takes the input from the user। अब जैसे मैंने सपोज यहाँ पे रेडियस 5 नहीं लेना था, चलो पाई तो माना कांस्टेंट है, बट लेट्स से आई वांट टू चेंज माय रेडियस वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे %d कर दूंगा, ठीक है, %d करके एक एम्परसेंट लगाना पड़ता होता है। अब मैं इसको बार बार ना पूरा रेडियस नहीं लिखना चाहता, तो आई एम चेंजिंग द वेरिएबल नेम। सो दिस इज माय इंट r व्हिच इज रेडियस एंड आई एम गिविंग द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। अब यहाँ पे scanf क्या करेगा, %d का मतलब है प्लीज एक्सपेक्ट इंटीजर, एम्परसेंट का मतलब है स्पेशली विद द scanf दैट प्लीज एक्सपेक्ट इंटीजर फ्रॉम द यूजर। तो वो हमें एक मौका देगा कि यार आप एक वैल्यू दो, उसके बेसिस पे मैं आपको रिजल्ट निकाल के दूं। सो दिस इज माय scanf, एक सिंपल सी लाइन है, printf के जैसा ही है, बस इसमें हम फालतू की कमेंट्री नहीं लिख सकते। दिस इज माय कमेंट्री राइट, एक्चुअली दिस इज कमेंट्री कि मैं एरिया इक्वल टू ये कर रहा हूँ, या मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूँ दैट एरिया ऑफ द सर्कल इज दिस, तो मतलब कुछ भी लिखो। scanf में ऐसा नहीं होगा, scanf से पहले आप लिख सकते हो इफ यू वांट टू से टू द यूजर दैट प्लीज इनपुट द वैल्यू ऑफ रेडियस, सो आप एक अलग से यहाँ पे डाल दो प्लीज इनपुट द वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक अलग से लिख दोगे तो वो एज इट इज इस लाइन को प्रिंट करेगा, उसके बाद बोलेगा कि चलो अच्छा वैल्यू दे दो मेरे को आके, सो दैट आई कैन गिव यू द आंसर। सो लेट्स रन दिस, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि scanf काम कैसे कर रहा है। गिव मी 1 सेकंड, क्या हो रहा है ये पाई इंटू, अच्छा मैंने r करना था इसको, बिकॉज नाउ इट इज r नॉट रेडियस। रन, हाँ तो ये कह रहा है प्लीज इनपुट द वैल्यू ऑफ द रेडियस, लेट इट बी 10, ठीक है, 10 से कैलकुलेशन करना भी आसान है, पाई r स्क्वायर 314 आएगा, तो एंटर मारा, आंसर इज 314.2000 ऐसे कुछ आ गया। ठीक है जी, अब ये मेरा आउटपुट आया है
for the area. But now if I run this program again, I have the option to give a new value of radius. जैसे मैंने पहले 5 दिया था, मैं 5 जितनी मर्जी बार रन कर लेता, my answer would have been same 78 point something, क्योंकि मैं हमेशा radius 5 ले रहा था. But now I have freedom to take any value of radius, let it be 7. तो ऐसे करेंगे तो ये 153 आ जाएगा. ठीक है, तो अब ये काम कैसे कर रहा है, I will quickly wrap this up because only 5 minutes are left. So I will tell you now that how this scanf works. ठीक है, scanf का सुन लो, ध्यान से सुनना, important है. So now scanf is saying that please expect a integer from the user, क्योंकि scanf क्या करता है, हमारी input लेता है from the user. और %r का मतलब क्या है, अभी तक हमने %f यूज कर लिया. %f का तो मैंने समझा दिया कि चलो %f है, %d है, वो बेचारा एक्सपेक्ट कर रहा है that please give me whatever the number you want to print. अगर float भेजोगे तो %f लगा दो, int भेजोगे तो %d लगा दो. But now this %r means that on the back end जो मेरी RAM है, RAM में my r is first of all, यहाँ पे तो डिक्लेयर हुआ है सिर्फ. अब यहाँ पे एक मैं फटाफट से एक छोटा सा और कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ. डिक्लेरेशन मींस दैट आई एम डिक्लेयरिंग कि मैं ऐसा कुछ यूज करना चाहता हूँ. आई वांट टू यूज समथिंग रिलेटेड टू int r, ठीक है, इन माय कोड. बट देन इफ आई वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग फ्रॉम द यूजर, तो मैं जब ये %r डालूंगा, इट विल गिव मी वन लोकेशन इन द रैम. लेट्स से एक रैम में लोकेशन इसको मिल गई एट लोकेशन मे बी 501 अगेन. इसको r को जगह मिल गई. ये जगह एलोकेट करवाता है %. ये तुम्हें r में जगह दिलवाएगा कि भाई मतलब रैम में जगह दिलवाएगा. एंड दिस r विल बी वट एवर आई एम गिविंग द वैल्यू. जो अगर मैंने सपोज 10 दिया या 5 दिया या 7 दिया, तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी टेम्परेरली मतलब जब तक वो प्रोग्राम चल रहा है. if this program gets executed, वो खत्म हो गया, रिटर्न 0 कर दिया, तो ये वाली चीज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. ठीक है, ये वाला वैलिड ही नहीं रहेगा, रैम से हट जाएगा. तो टेम्परेरली उसको जगह मिली, इट गेट्स द वैल्यू एज 10 हियर एंड इट विल यूज दिस थिंग एट दिस पॉइंट व्हेन इट इज बीइंग कॉल्ड इनसाइड द printf. जब मुझे ये ऑपरेशन करवाना होगा तो मैं पाई की वैल्यू ऊपर से मंगवा लूंगा, क्योंकि मेरे पास पाई पहले से था. ठीक है, एंड r विल बी brought from the RAM. In fact, one more thing, when we say that float pi is equal to 3.142, इसका मतलब ये भी है जो कि RAM जो है, RAM में उसको पाई को भी एक जगह मिली है जिसमें उसमें 3.142 सेव करा है बैकएंड पे. ठीक है जी, उसने ये वाली चीज यहाँ से मंगवा ली RAM से. एंड R की लोकेशन कोई और थी. ठीक है, सपोज 10 था तो वो 10 यहाँ पे 2 बार आ गया. ठीक है, तो मतलब बिकॉज मुझे RAM में यूजर से इनपुट लेके जाना था, ठीक है, इसलिए मुझे ये %r लगा दिया. %r का मतलब है कि मुझे r के लिए जगह दे दो, आई वांट टू सेव ए नंबर. अब वो नंबर कोई भी हो सकता है, इसलिए % लगा रहे हैं. इज माय थ्योरी क्लियर टू यू अबाउट दिस scanf? यस सर. ठीक है, बहुत सिंपलीफाई करके बताया अभी. होता ही है एक्चुअली. ठीक है, अब scanf हो गया, printf हो गया. आई थिंक अब लैब में भी यू विल बी एबल टू डू द कोडिंग इजीली. क्विकली आई वांट टू स्टार्ट वन स्मॉल टॉपिक. ओनली इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ दैट कंप्यूटर में एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ 0 and 1. उसमें आप अपना नाम भेज रहे हो या कोई और नंबर भेज रहे हो, लेट्स से आप 10⁻15 करके कोई बहुत बड़ा नंबर सेव करना चाहते हो, बैक एंड पे वो 010101 ऐसे कुछ करके वो 1010 की फॉर्म में ही सेव करेगा. ठीक है, एंड एनी इंफॉर्मेशन कैन बी इनकोडेड इनटू बाइनरी स्ट्रिंग्स. बाइनरी स्ट्रिंग्स का मतलब है, लेट्स से दैट बेस्टो, आई थिंक यू पीपल हैव स्टडीड अ बिट अबाउट दिस इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आल्सो. इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस वैल्यू ऑफ 3 व्हिच इज इन decimal means base 10. If you want to convert it into binary number system with base 2, it will be equal to 1 1, right? इतना सबको पता है? Yes sir. Yes. So this 1 1, अरे कोई ना, मैं इसको बहुत डिटेल में करवाऊंगा इन टुमारोज लेक्चर. दिस 1 1 इज कॉल्ड माय बाइनरी स्ट्रिंग. ठीक है जी, जो मेरा ये याद नहीं आ रहा है, बहुत पुराने किया था मतलब ये. अरे डोंट वरी यार, आई विल टीच दिस बाइनरी नंबर सिस्टम इन टुमारोज लेक्चर. वी विल स्टार्ट बाइनरी नंबर सिस्टम, बहुत डिटेल में करेंगे इसको. एंड 0 और 1 इज कॉल्ड ए सिंगल बिट. तो वहां पे वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, तो उसको एक सिंगल बिट बोलते हैं. एंड सेट ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट. तो मतलब ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं. आई वांटेड टू स्टार्ट दिस थिंग, थोड़ा आइडिया देना था बाइट बाइनरी के बारे में. हाँ जी, 1 second, आई वांट टू सी द कमेंट्स. देयर आर फ्यू डाउट्स. यस इज एनीवन फ्रॉम ME1? So these people are from ME1 to 3 only in my class. So that's all for today.
today's class is over. It's 2:40. Thank you. We will meet in tomorrow's lecture. Thank you, sir. Okay, sir. Yes. Thank you, sir. Okay. Bye bye. Thank you, sir. Okay.